हाँ पहुंच गई मैम। हाँ जी ठीक है। Good evening, sir. Good evening. Welcome. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening. Dr. Good evening. Welcome. Can we start now? Kiran? Yes, I hope you should seek the permission from the chief guest, Madam Rekha Bajaj, to please allow us to start. Please, ma'am, please start. Yeah, Okay. thank you. Thank you, madam. A very good evening to one and all present on this virtual platform. It is a proud privilege and honor to be amidst a galaxy of esteemed dignitaries. I extend my heartiest welcome to our chief guest. Please mute सबको. Please mute everyone. अनुराधा mute कर दें. डन सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Thank you. So I extend my heartiest welcome to our chief guest, Rotarian Rekha Bajaj, First Lady of our district 3080. She is a force behind our district governor, Rotarian Ramesh Bajaj, and both of them are taking our Rotary District 3080, consisting of 85 clubs, to new heights through their vision, through their foresight, through their tireless efforts, leadership qualities, and above all, through their sincerity, honesty, and dedication in the service of humanity. Our heartiest welcome to you, madam. Thank you, sir. Thank you. Welcome, madam. I further take deep pleasure in welcoming Dr. Rajan Sahu, Senior Consultant, Surgical Oncology, Paras Hospitals, our guest of honor and keynote speaker for today's webinar. This webinar is being organized at zonal level, and all the 5 clubs of Zone 5 are present on this platform. I welcome our AG, Assistant Governor Zone 5, Rotarian Ashok Sharma, to this webinar. And I also extend a warm welcome to Rotarian Vijay Gupta, President Rotary Club Ambala, Rotarian Mohan Singh Lamba, President Rotary Club Ambala City, Rotarian Shashi Gulati, President Rotary Club Area Ambala, Rotarian Raj Kumar Sangwan, President Rotary Club Brada. I express my gratitude and welcome all and protectors from we have Rotary Club, S.A. Jain College, DAV College Naniola, DAV College Ambala City, and we have representation of Rotaracts from all these colleges, and also NCC cadets from MDST Girls College, where we have our Rotaract Club, and Major Sudesh Prashar is also there, who is from NCC Battalion of MDST Girls College. She is on this platform. I welcome you, Major Sudesh Prashar.
Then we have ASME chapter members also here on this platform. I welcome all of them along with their advisors. Ladies and gentlemen, once again, along with my whole team, I welcome each one of you present here on this webinar. Rekha ji, we wanted to welcome you with real bunch of flowers in the physical meeting of club. But now mostly we are having our virtual meetings. We extend a very warm welcome to you by presenting you a virtual bouquet of flowers. Thank you, sir. स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं आया आपकी? नहीं दिख रही। We are still waiting for your birthday bouquet to come from Ambala to Panipat. Yes. Because they move with the speed of the internet. Sir, you just wait. We are just sharing the screen. Yes. We also welcome Dr. Rajan Sahu with virtual bouquet of flowers. These are all the 5 presidents of 5 Rotary clubs, madam, on the screen. Yes, sir. Thank you. In our Indian tradition, every auspicious occasion commences with lighting of lamp. Light symbolizes knowledge, and knowledge has been considered as a lasting inner wealth by which all outer achievements can be accomplished. Rekha ji and Dr. Sahu to light the lamp virtually now. अब भी दिख रही है लाइटनिंग ऑफ लैम्प? अच्छा, दोबारा दिख। Please put it. चुप जा यार, काम कर रही हूँ। हाँ, दिख रहा है? चल ही नहीं रही क्या? ठीक है क्या? We are not able to. हमने मान लिया हमने, चलो ठीक है. We can move further now. Dear friends, आज हमें I hope the lighting of lamp has been our chief guest and staff. Yes, yes, we can see, ma'am. Thank you so much. We have seen. Thank you. Yeah, thank you. फ्रेंड्स, हम यह इवेंट नवरात्रों के दौरान कर रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है डॉक्टर उज्जवल से कि वे अपने इस वेबिनार में सम्मिलित सभी की ओर से संपूर्ण समर्पण की भावना से अपने मधुर स्वर में सभी को भाव विभोर करें. डॉक्टर उज्जवल. Thank you, sir.
आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, यू आर ऑडिबल। But your voice is less. उज्जवल थोड़ा सा पास आके बोलिए माइक के. ओके Volume- मैम, ओके। आप क्लियर है मैम? हाँ, now it's- तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धन्यवाद सर। Thank you so much, Dr. Ujjwal, थैंक यू सर। for your live performance. Thank you so much. Wonderful. हरियाणवी भाषा में नवरात्रों के इस शक्ति पूजा के लिए बहुत ही कम स्वर मिलते हैं। आज इस अवसर पर हरियाणवी संस्कृति और सेमी क्लासिकल नृत्य के द्वारा रोटरेट क्लब MDSP गर्ल्स कॉलेज अंबाला सिटी की प्रस्तुति का एक वीडियो क्लिप आप सबके लिए। चुंदड़ी तारारी मंगवाई, रजुती जो दाने से लाई, चुंदड़ी तारारी मंगवाई, रजुती जो दाने से लाई। नाक में नथली प्यारी लाकर पायल चांदी री घड़वाई। मैया की बोले जय जयकार बजावे हाथ सुताड़ी, छोट्याई पानी ने भरती नाच जदिया हाली धरती। यगज बड़ मैया के चाली, यगज बड़ मैया के चाली, यगज बड़ मैया के चाली, यगज बड़ मैया के चाली।
गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Thank you. Anuradha ji, some people are waiting in the waiting room also. Please add them. Friends, worldwide, breast cancer is the leading type of cancer in women, accounting for 25% of all the cases. It is more common in developed countries and is more common in women, rather 100 times more common in women than men. आज हमारे बीच में इसी फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मौजूद हैं और वो में इस बीमारी के साइंस, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, मेडिकल कंडीशंस, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, I would request Dr. Nidhi Jain, who herself is a renowned pathologist of Ambala, to formally introduce our keynote speaker, Dr. Rajan Sahu, and also invite him for his informative talk on breast cancer. Dr. Nidhi Jain. Thank you, sir. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Rotary Club Ambala Central, I extend a very, very warm welcome to all our guests present here who have made it in spite of such busy schedules. The gathering is heartwarming, and it is indeed a pleasure and honor to welcome and applaud our special guest today evening, Dr. Rajan Sahu. A big round of applause for Dr. Sahu. Ladies and gentlemen, thank you all. It would be very partial on my part if I highlight Dr. Sahu's achievements and accolades that he has been able to accomplish in short span of time, which again is a prominent credential of his brilliance. Sir, it gives me immense delight and privilege to introduce you to the esteemed gathering. Dr. Rajan Sahu has more than 14 years of surgical experience. He completed his graduation in year 2000 from PGIMS Rohtak. He did his post-graduation MS in General Surgery from Dr. SN Medical College, Jodhpur in 2005. He has worked as a senior resident and assistant professor at PGIMS Rohtak from 2005 to 2011. Post this, he completed his DNB in surgical oncology in 2014 from Chittaranjan National Cancer, Kolkata.
He has keen interest in oral cancers, breast cancer surgery, and GI oncology. He has scientific publication in national and international journals. He is life member of Association of Surgeons of India. Yes, as senior resident, assistant professor in general in PGIMS Rohtak. After that, he has experience as consultant surgical oncology at Alchemist Hospital, Panchkula. His areas of expertise are in head and neck cancer, breast cancer, gastrointestinal cancer, gynecological cancer, and his OPD schedule is Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. Thank you, sir. I request Rajan Sahu to please to please inform us about breast cancer and its details so that everybody can have preventive measures. Thank you. Thank you very much, Dr. Nidhi, for the introduction. And thanks all the members of the Rotary Club and all the participants who have joined over here. I think I'm audible, please. Yeah, you are audible. थोड़ी mixed language use कर लेना आप जरा. Yes, sir, audible. Okay. So it is nice to see that all the formalities of a conference are being followed in the virtual way. So not wasting much of time, I will directly come to today's topic. We know that October is observed as a breast cancer awareness month all over the world. And the motive of this is to create awareness amongst the general public regarding breast cancer, because many of these cases are preventable and cancer as such is a lifestyle associated disease. So why do we need to talk about cancer? Because we have heard that the incidence of cancer is increasing by the day. So everyone is one way or the other is touched by the cancer, either in a personal way or some family member has been affected by the malignancy or somebody in the friend circle. तो कैंसर कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है, इसलिए इसके बारे में हमें जानना जरूरी है. इन हेडिंग्स के अंदर हम इस आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैंसर क्या है, ये क्यों होता है और कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के लिए. सबसे पहले कैंसर क्या है. कैंसर हमारे सेल बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है और हर सेल का एक निर्धारित समय होता है जब तक वो अपने काम पूरे करता है और वो जीवित रहता है, और जब वो उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो वो सेल एक नेचुरल डेथ में खत्म हो जाता है. लेकिन किसी भी कारण से जब वो सेल खत्म नहीं हो रहा है और वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होता जा रहा है तो वो एक कैंसर का रूप ले लेता है. इसके कारण कई हो सकते हैं. जिस किसी भी कारण से यदि उसके जेनेटिक टिश्यू को अगर इंजरी पहुंचती है तो वो एक कैंसर के सेल में बदल सकता है. अगर हम इस पिक्चर में देखें तो अपर हाफ में एक प्रोसेस है कि नॉर्मल सेल डिवाइड हुआ और जब भी उस सेल को कोई डैमेज हुआ तो वो सेल सुसाइड या एपोप्टोसिस हो जाती है, उस सेल की डेथ हो जाती है. लोअर हाफ में हम देखेंगे कि कैंसर सेल है, उसके जेनेटिक डैमेज हुआ लेकिन वो बॉडी के जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं जिनसे उसको रुकना चाहिए था और उसकी डेथ हो जानी चाहिए थी सेल की, वो नहीं होती है और वो एक अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होता रहता है और वो हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म है उससे बाहर निकल गया है, कंट्रोल मैकेनिज्म से. बार बार डिवाइड होने के बाद वो एक कैंसर का रूप ले लेता है. जब हम एक जनरल टर्म बोलते हैं तो हम कहते हैं कि कोई बॉडी में स्वेलिंग है तो एक ट्यूमर हो गया है. तो जरूरी नहीं है कि हर स्वेलिंग और हर ट्यूमर है वो कैंसर ही हो.
कैंसरस ट्यूमर एक साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन कई बार कुछ सिंपल गांठें और ट्यूमर होते हैं जो कि कैंसरस नहीं होते, दे आर बिनाइन ट्यूमर्स। जैसे कि यूट्रस में या बच्चेदानी में कई बार फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, तो वो कैंसरस नहीं होते हैं, वो एक सिंपल रसोली होते हैं। तो इसलिए हमें ये डिस्टिंग्विश करना है, दोनों में अंतर करना है कि कौन सी गांठ कैंसर की है और कौन सी नहीं है। लेकिन किसी भी स्वेलिंग या लंप जो भी बॉडी में है उसके बारे में सचेत रहना जरूरी है। कैंसर का बर्डन क्या है अभी ओवरऑल? केवल हमारे देश में ही लगभग 2018 में पूरे वर्ल्ड में 18 मिलियन केसेस नए कैंसर के डायग्नोज हुए हैं। और लोग हमसे पूछते हैं, पेशेंट पूछते हैं हमसे आकर के, जी कैंसर तो बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इट इज एज रिलेटेड डिजीज एंड लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिजीज। एज रिलेटेड मीन्स कि जैसे जैसे एक इंसान की एज बढ़ती है तो उसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कैंसर का एक जो मैकेनिज्म है जो होने का, उसमें एक कारण है उसके जीन्स को या डीएनए को डैमेज। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ेंगे और वो डैमेज एक्यूमुलेट होता रहता है सेल के अंदर और वो कैंसर का रूप ले सकता है। इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है कैंसर के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। सेकंड कैंसर केसेस बढ़ने का कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारे खाने पीने में चेंजेस, हमारे फिजिकल एक्टिविटी में कमी, हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब वो कारण हैं जो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड जिनकी वजह से कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। भारत में अगर देखें तो 2018 में ही लगभग 12 लाख नए केसेस कैंसर के डायग्नोज हुए थे और लगभग 8 लाख डेथ्स जो हैं कैंसर की वजह से 2018 में दर्ज की गई थी। कॉमन कैंसर जो हैं हमारे वो हैं फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर। आज का टॉपिक हमारा मेनली ब्रेस्ट कैंसर के लिए है तो हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। एक समय था जब सर्विक्स कैंसर यानी कि बच्चे यानी कि मुंह का कैंसर जो सबसे कॉमन था महिलाओं में, लेकिन बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड बिकॉज ऑफ बेटर हाइजीन सर्विक्स कैंसर कम हो गया है और अभी ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर 1 कैंसर अमंगस्ट फीमेल्स इन इंडिया। लग 2018 में ही लगभग 2.25 लाख केसेस ब्रेस्ट कैंसर के नए डायग्नोज हुए थे इंडिया के अंदर। तो इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल्स इन इंडिया। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? किसी भी कैंसर से अगर हमको बचना है, उससे बचाव करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ऑब्वियसली फीमेल जेंडर, जैसा कि डॉक्टर सुजीत ने भी अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में बताया था कि ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है। ऑब्वियसली क्योंकि फीमेल में ब्रेस्ट टिश्यू मास ज्यादा होता है और ब्रेस्ट कैंसर जो है कि हार्मोन ड्रिवन कैंसर है ये, और जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका लेवल्स फीमेल्स में ही ज्यादा होता है। तो इसलिए फीमेल जेंडर होना ही एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। एज 40 साल और 50 साल के लगभग उस उम्र के बाद से ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि ये एक हार्मोन रिलेटेड कैंसर है, तो वो फीमेल्स जिनमें की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जल्दी शुरू हो जाती हैं और लंबे समय तक चलती हैं, यानी कि अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। रीजन कि जो ये मेंस्ट्रुअल जो लाइफ पीरियड है फीमेल का, अगर वो लंबा रहता है तो उसकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर है वो ज्यादा होता है। तो इन कारणों से उन फीमेल्स में जिनमें मेंसेस जल्दी आ गए हैं और लेट ईयर्स तक चलते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक और कारण है कि नली पैरिटी। नली पैरिटी मीन्स जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया या बच्चे को जन्म दिया लेकिन एक लेट उम्र में, मीन्स आफ्टर 30s, आफ्टर 35। क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो
ये ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो एक तरह से ये प्रोटेक्टिव पीरियड रहता है फीमेल के लिए जब वो प्रेग्नेंट है और जब वो ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चे को। तो जिन्होंने ये नहीं किया है उनके लिए ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेस्ट फीड ना करना, और एक इंपॉर्टेंट कारण है फैमिली हिस्ट्री। अराउंड 20 to 30% जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिल जाती है। फैमिली हिस्ट्री में जितना क्लोज मेंबर होगा और जितने ज्यादा मेंबर्स अफेक्टेड होते हैं उतना ही ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर एक इंडेक्स कोई पेशेंट है, उसके परिवार में फीमेल्स में मदर को या मदर की सिस्टर को या उसकी खुद की सिस्टर्स को, तो जितने ज्यादा मेंबर्स को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उतना ही उसका खुद के में ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और इसी कड़ी में आते हैं BRCA1 और 2 म्यूटेशंस, BRCA1 BRCA2। ये भी एक जीन्स हैं जिनमें म्यूटेशन हो जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी, जो फैट अगर हमारी बॉडी में जमा हो जाता है वो हॉर्मोन्स को एक्टिव ईस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट कर देता है। इसकी वजह से जो ओबीज फीमेल्स हैं उनके शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा रहता है, उनकी ब्रेस्ट को ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा होता है। इसलिए ओबेसिटी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। लास्ट इज रेडिएशन। अगर ब्रेस्ट के एरिया में कभी किसी ट्रीटमेंट पर्पस से कोई रेडिएशन मिली है तो वो रेडिएशन भी एक रिस्क फैक्टर होती है ब्रेस्ट कैंसर बनने के लिए। पेशेंट हमारे पास काफी कुछ पेशेंट हैं जो एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिजीज में आते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें पहले पता ही नहीं चला कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और हम जनता को बताते भी हैं कि भी क्या लक्षण हैं जिससे कि वो एक अर्ली स्टेज पर ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं। सो व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? कोई भी गांठ, लंप, ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ महसूस होती है जो बाकी ब्रेस्ट के मुकाबले आपको एबनॉर्मल फील होती है तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकती है। निप्पल से डिस्चार्ज, स्पेशली अगर वो डिस्चार्ज रेड कलर का है, ब्लड मिक्स्ड है, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना यानी कि इन्वर्जन ऑफ निप्पल, या ब्रेस्ट की जो स्किन है उसमें डिम्पलिंग, जैसे संतरे के छिलके के ऊपर दाने निशान होते हैं इस तरह से कि अगर चमड़ी हो जाती है ब्रेस्ट की तो वो भी एक कैंसर के साइंस हो सकते हैं। ब्रेस्ट के स्किन का रेड हो जाना, स्पेशली काफी बड़ा एरिया अगर रेड हो जाता है, ये भी एक कैंसर का लक्षण है, और यूजुअली ये जब एडवांस्ड कैंसर होता है तब ये देखा जाता है। हमारी बगल में या गर्दन के निचले हिस्से में गांठ बन जाना, वो भी ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित हो सकते हैं। या दोनों ब्रेस्ट के साइज में अंतर होना, जो कि रिसेंट है, अगर फीमेल ने रिसेंटली ये चीज नोट की है तो ये भी एक सस्पिशियस साइन है ब्रेस्ट कैंसर होने का। फिर है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कैसे करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो क्या तरीके हैं हम ये एस्टेब्लिश कर पाए कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। पहले तो अगर पेशेंट खुद से जागरूक है, एक लेडी, तो वो सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से अगर अपनी ब्रेस्ट चेक करती है तो वो डिटेक्ट कर सकती है कि उसको कोई गांठ तो नहीं है ब्रेस्ट में, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। फिर है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। या क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी कि अगर फीमेल को कोई डाउट है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है उसको कहते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। वी कैन डिटेक्ट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं ये जांच करने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर है। अगर कोई सिम्टम है तब भी और सिम्टम नहीं है तब भी हम वो टेस्ट कर सकते हैं एक खास एज के बाद। उनमें है मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, और अगर कोई डाउटफुल लीजन है, कोई डाउट है हमको किसी गांठ में, किसी जगह पे हमको लग रहा है कि ये कैंसर हो सकता है, तो उसकी एफएनएसी या बायोप्सी की जाती है। और जब कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है तो फर्दर उसको जानने के लिए कि ये किस स्टेज पर है, कुछ एडवांस टेस्ट हैं जैसे कि एमआरआई या पेट स्कैन। ये सब करने के बाद
आमतौर पर हम ब्रेस्ट कैंसर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर यानी कि जब हम डायरेक्टली ऑपरेट करके पेशेंट के कैंसर को निकाल सकते हैं। लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर यानी कि हमको पहले कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट देनी होगी पेशेंट को उस ट्यूमर को कम करने के लिए, और उसके बाद हम उसको ऑपरेशन करके उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरा ग्रुप है मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टेटिक मींस जिसको हम एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं स्टेज 4, यानी कि जब बीमारी शरीर में अन्य ऑर्गन्स में फैल गई है तो अब हम उसको कहते हैं मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में जो प्रेजेंटेशन रहती है वो काफी बार एडवांस केसेस में आते हैं हमारे पास। जब हमने डायग्नोसिस भी कर लिया, हमने उसको कैटेगराइज भी कर लिया, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया हमने ब्रेस्ट कैंसर को, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? सर्जरी, ऑपरेशन करके ब्रेस्ट के कैंसर को निकालना, कीमोथेरेपी यानी कि कुछ इंजेक्शंस दे करके कैंसर की दवाओं के और उस बीमारी को कम करना, और तीसरी पद्धति है रेडिएशन थेरेपी, जिसको कहते हैं भी सेक लगाना रेडिएशन मशीन का। तो ये 3 मेन ऑप्शंस हैं जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन फॉर द पेशेंट, रीजन बीइंग कि ना केवल ब्रेस्ट कैंसर बल्कि अन्य सॉलिड ट्यूमर्स, जो भी सॉलिड कैंसर्स हैं, अगर हम उसको निकाल सकते हैं किसी भी स्टेज में तो दैट गिव द बेस्ट रिजल्ट्स टू द पेशेंट। सर्जिकल ऑप्शंस में हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन जो काफी समय से चली आ रही है और जिसको एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर माना जाता है, उसको कहते हैं मेस्टेक्टमी, यानी कि पूरी ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है इस ऑपरेशन में, और उसके साथ ही जो हमारे आर्म पिट यानी कि बगल में अगर कोई ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स हैं उनको भी सेम सिटिंग में उसको निकाल दिया जाता है। इसको कहा जाता है मेस्टेक्टमी। जब हम ब्रेस्ट को नहीं बचा पा रहे हैं और कई बार फीमेल की विश है कि वो चाहते हैं कि पूरी ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाए, तो वन ऑप्शन इज मेस्टेक्टमी। आजकल ट्रीटमेंट में काफी इंप्रूवमेंट आ गई है और जरूरी नहीं है कि हमें हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में पूरी ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़े। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास लंपेक्टमी। लंपेक्टमी मींस जो ट्यूमर है ब्रेस्ट में उसके आसपास एक सेफ मार्जिन लेकर के, अराउंड 1 सेंटीमीटर एक सेफ मार्जिन लेकर के हम उस ट्यूमर को निकाल देंगे और बगल से लिम्फ नोड्स को निकाल देंगे और बाकी ब्रेस्ट एज सच इंटैक्ट रहेगी। इसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। ये अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करता है तो ये ऑप्शन उस पेशेंट के लिए अवेलेबल रहती है। तो ये एक मैसेज जाना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि हमको हर पेशेंट की पूरी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करता है तो हम उनकी ब्रेस्ट बचा भी सकते हैं और इलाज को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज हाउ पेशेंट्स प्रेजेंट टू अस इन इंडियन सिनेरियो। ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी पिक्चर नहीं है, ये लास्ट ईयर की ही पिक्चर है। जो पेशेंट हमारे पास इस तरह से एक फंगेटिंग बड़े बड़ी गांठों के साथ हमारे पास आते हैं और इसी सिनेरियो को हमको चेंज करना है। और यही इस टॉक का और ये मैसेज जो देना है उसका मकसद यही है कि कितनी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों में, ताकि इस स्टेज तक पेशेंट पहुंचे ही नहीं। जबकि हमने इनका भी अच्छा इलाज किया, हमने उस ट्यूमर को रिमूव किया और उसके बाद उनका इलाज कंप्लीट हुआ। तो क्या कारण है कि पेशेंट हमारे पास इतनी लेट क्यों आते हैं और क्यों हमारे रिजल्ट्स कई बार वेस्टर्न कंट्री से इंफीरियर, उनसे कम रह जाते हैं? लेट प्रेजेंटेशन, फीमेल्स की हेल्थ पर ओवरऑल ध्यान कम दिया जाता है फैमिलीज में, स्पेशली रूरल एरियाज में। कई बार पेशेंट खुद ही अपनी बीमारी को छुपा लेती है और वो ब्रेस्ट से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो परिवार से शेयर नहीं कर पाती है। तो काफी केसेस हैं जो हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं। जेंडर बायस इन ट्रीटमेंट, फीमेल्स की ट्रीटमेंट इज सेकेंडरी, मेल की ट्रीटमेंट इज प्राइमरी। ये धारणा भी है जिसकी वजह से फीमेल्स अपनी बीमारी के साथ हमारे पास लेट आती हैं। डिस्पैरिटी इन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज में बहुत डिफरेंस है।
जब तक पेशेंट किसी दूर दराज के एरिया से हमारे पास पहुंचता है तो उसकी डिजीज तब तक बढ़ चुकी होती है। Even in urban areas also, the metro cities have better facilities as compared to tier 2 or tier 3 cities. तो कैसे हम आम जनता तक, कैसे ग्रास रूट लेवल तक हेल्थ फैसिलिटीज को पहुंचा सकते हैं, ये भी एक देखने वाली चीज है। फिर है कि कुछ मिथ्स, कुछ धारणाएं लोगों ने ऐसी बना रखी होती हैं कि जिसकी वजह से वो कैंसर का इलाज ही नहीं करवाते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास लेट आते हैं। सबसे बढ़िया है कि हम बीमारी को होने ही ना दें। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। कैंसर कोई एक दिन में बनने वाली बीमारी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सेल के डीएनए में डैमेज हुआ और उसके बाद काफी समय लगता है कैंसर का रूप लेने में उसको, और बीमारी जो है वो एक सेल से शुरू होती है और धीरे धीरे मल्टीपल सेल्स इकट्ठे होकर के और फिर वो एक ट्यूमर का रूप लेते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम कैंसर को होने ही ना दें, या अगर होता है तो हम उसको इतनी अर्ली स्टेज में पकड़ लें कि पेशेंट को ज्यादा कोई बॉदरेशन ना हो उसकी ट्रीटमेंट से। तो यदि हम कैंसर को होने से पहले ही पकड़ लेते हैं, उसको कहा जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। यानी कि वो कारण जो हमने डिस्कस किए जिनसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, हम उन कारणों को हटा दें, और यदि होता है तो हम उसको एक अर्ली स्टेज में पकड़ लें, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम बदल सकते हैं? कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जेंडर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी रेस, जेनेटिक्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि हम टोबैको, स्मोकिंग से बचे रहें। ओबेसिटी जो एक ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है, उससे बचें, यानी कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रहे हमारे रूटीन में, चाहे 30 to 45 मिनट्स डेली का एक रूटीन होना चाहिए हमारे दिनचर्या में। एंड टू अवॉइड एल्कोहल। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये वो तत्व होते हैं जो कैंसर से लड़ने में प्रभावकारी हैं। तो जो इनिशियल जो हमारी सेल्स को डैमेज जो हो रहा है उसको रिपेयर करने में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, और इनके रेगुलर सेवन से हम अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपनी डिजीज फाइटिंग जो पावर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ना ये केवल कैंसर के अगेंस्ट लड़ने में हेल्पफुल होती है, इवन कुछ इन्फेक्शंस हैं उनके लड़ने में भी है। ओवरऑल इम्यूनिटी हमारी बॉडी की इंक्रीज होती है, जैसे कि आजकल कोरोना काल में देखा गया है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बीमारी से बचे रहते हैं। वी शुड अवॉइड हाई कैलोरी फूड्स, तली हुई चीजें जिनमें सैचुरेटेड फैट्स हैं स्पेशली, उनको अवॉइड करना चाहिए। देयर शुड बी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। वी शुड मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, एंड ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी एनकरेज्ड इन फीमेल्स, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करने से एक प्रोटेक्शन मिलती है फीमेल को अगेंस्ट दी ब्रेस्ट कैंसर। ये थे प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि हम कैंसर को होने ही नहीं दे रहे थे। फिर चीज आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन की, यानी कि उसको अर्ली स्टेज पे बिल्कुल हम उसको डिटेक्ट कर लें, उनको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग मेथड्स। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। जैसा एक मैंने कहा सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि फीमेल खुद से मंथ में एक बार अपने ब्रेस्ट को चेक करे, उसको कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन, और वो काफी कुछ लंप्स को, ट्यूमर्स को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। आफ्टर द एज ऑफ 40, मेमोग्राफी आफ्टर एवरी 1 or 2 years, इट कैन डिटेक्ट कैंसर्स एट एन अर्ली स्टेज। ये वो उन ट्यूमर्स को पकड़ लेते हैं जो हमें कई बार हाथ से महसूस नहीं होते, जो गांठें, उनको मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर सकते हैं। और इन सब का मकसद है कि अर्ली डायग्नोसिस, जिससे कि पेशेंट की ट्रीटमेंट में ज्यादा मोर्बिडिटी, यानी कि उनको ज्यादा कष्ट ना पहुंचे ट्रीटमेंट के दौरान, और उनकी ट्रीटमेंट की सीवियरिटी भी कम रहे। सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है? हम फीमेल्स को एडवोकेट करते हैं कि महीने में एक बार
जब उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं चल रही हैं। वो अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे बेस्ट टाइम ड्यूरिंग शावर या ड्यूरिंग ड्रेसिंग, जब वो कपड़े पहन रहे हैं तब। तो मिरर के सामने खड़े होकर के उनको अपने ब्रेस्ट को एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिन करना है। जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं 12 बजे से लेकर के फिर 1, 2, 3 इस तरह से करके एक पॉइंट से स्टार्ट करके ब्रेस्ट में, और घड़ी की सुई की तरह पूरी चारों तरफ घूमते हुए उनको पूरी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, और लास्ट में सेंट्रल एरिया को देखना है। और कोई भी हार्डनेस जो उन्होंने पहले नोट नहीं की थी, कोई गांठ जो बाकी ब्रेस्ट से अलग है, या कोई निप्पल डिस्चार्ज आ रहा है, तो ऐसी कोई भी उनको संदेह लगता है तो वो अपने डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। ये था हाथ से चेक करने का। फिर विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब आप मिरर के सामने खड़े होकर के देखेंगे और आपको दोनों ब्रेस्ट के साइज में, उनकी शेप में कुछ एसिमेट्री, मतलब कुछ अंतर लगता है दोनों ब्रेस्ट में, तब भी उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। खासकर अगर वो चेंजेस रीसेंट चेंजेस हैं, या कोई स्किन के ऊपर रेडनेस, कोई डिम्पलिंग, कुछ निशान ऐसे लग रहा है कि स्किन अंदर की तरफ धंस गई है या निप्पल अंदर की तरफ धंस गया है, तो ये भी फीमेल खुद से नोट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है बेड पर लेट करके, और जिस तरफ की ब्रेस्ट को चेक करना है वो हाथ सिर के नीचे रखा जाए। उससे क्या होता है कि ब्रेस्ट ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, चेस्ट वॉल ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, और उसी तरीके से महसूस करते हुए उंगलियों के अगले भाग से एक फर्म प्रेशर से पूरी ब्रेस्ट को चेक करना। इन सब चीजों से क्या होता है? इन सब चीजों से ये होता है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हमने देखा है कि वहां पर जो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं, और जो नेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये हैं, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ये आम जनता इसको फॉलो करती है। वो फॉलो करते हैं तो वो ज्यादातर जो कैंसर्स हैं उनको स्टेज 1 में ही डिटेक्ट कर लेते हैं। स्टेज 1 में डिटेक्ट करने से उन लोगों की जो कैंसर रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं। अगर इस हम ग्राफ में देखें तो ये रेड वाले जो ग्राफ्स हैं ये दिखा रहे हैं अबव एवरेज जो कैंसर डेथ्स हैं, और जो ब्लू वाले हैं ये हैं कि घटती हुई कैंसर डेथ्स। तो सभी साइड्स को कॉमनली मिलाकर के देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो मोर्टेलिटी है, जो कैंसर रिलेटेड डेथ्स है, वो कम होनी शुरू हो गई हैं। वो इसलिए है कि वो लोग अर्ली स्टेज पे अपनी बीमारियों को डायग्नोज कर लेते हैं। और अगर इसके जस्ट हम नीचे देखें राइट साइड वाले ग्राफ में, तो ब्रेस्ट के केस में भी उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो नेगेटिव में चली गई है। तो आवर एम शुड बी, फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन, कि कैसे हम कैंसर को से बच सकते हैं। अगर नहीं बच पाए हैं, कैसे हम उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं, और जब एक बार कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसकी टाइमली और एडिक्वेट ट्रीटमेंट विद अ स्पेशलिस्ट एंड इन ए वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, जो कि पूरी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। और केवल ये ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंसर पेशेंट्स का एक रेगुलर फॉलो अप भी जरूरी होता है। क्योंकि हम मान लीजिए हमने आज पेशेंट की ट्रीटमेंट कंप्लीट की, हम आज ही हम पेशेंट को लेबल नहीं कर देंगे कि वो क्योर हो गया है कैंसर से। क्योर हम उसको लेबल करेंगे विद अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए कैंसर कई बार 1 साल के बाद, 2 साल, 5 साल के बाद भी दोबारा आ जाता है। इसलिए एक पेशेंट का एक रेगुलर फॉलोअप अपने डॉक्टर के साथ जरूरी है। ये और ट्रीटमेंट जो कैंसर के लिए अवेलेबल हैं वो मैंने आपको बता दी, आपको सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, और लेटेस्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एंड मींस कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, दे आर काइंड ऑफ कीमोथेरेपी, लेकिन वो सिर्फ एक टारगेट सेल पे ही काम करती हैं, यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं उन्हीं के ऊपर एक्ट करती हैं, और नॉर्मल जो बॉडी के सेल्स हैं उनको डैमेज कम होता है और पेशेंट को साइड इफेक्ट कम होते हैं। सो दीज आर द लेटेस्ट ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी। लास्टली, कुछ जो गलत धारणाएं जो लोगों में बनी हुई हैं, मिथ्स क्या हैं कैंसर रिलेटेड। कैंसर कोई छूत की बीमारी नहीं है,
वो किसी को टच करने से, किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ खाना खाने से कैंसर नहीं होता है। तो अगर परिवार में कोई कैंसर का पेशेंट भी है तो ये नहीं कि उससे ही डायरेक्टली किसी को कैंसर हो जाएगा। कैंसर कोई कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है। परिवार में अगर किसी एक आदमी को कैंसर हुआ है तो बच्चों को कैंसर होगा ही होगा, नहीं, ये भी एक गलत धारणा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो केवल 5 से 10% कैंसर के केसेस ही हैं जो फैमिलियल कैंसर केसेस होते हैं। कैंसर हो गया है तो अब मरीज का डेथ तय है, नहीं, ये नहीं है। कैंसर कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो कई सालों से अपनी ट्रीटमेंट के बावजूद भी हमारे साथ फॉलो अप कर रहे हैं और वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जरूरी है कि हम उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें। सो कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। कैंसर पेशेंट कहता है कि जी मुझे गांठ तो महसूस हो गई थी लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो पेन जो है वो कोई कैंसर का लक्षण नहीं है। आमतौर पर कैंसर की गांठों में पेन नहीं होता। पेन यूजुअली कैंसर में होता है एडवांस्ड स्टेजेस में। तो अगर पेन नहीं है लेकिन और कोई लक्षण लग रहा है, आपको शक लग रहा है, तो वो आपको चेक करवाना है। कई बार पेशेंट कहते हैं कि परिवार में किसी को बीमारी हो गई है, वो कहते हैं जी इनकी तो उम्र ज्यादा है, 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, अब इनका इलाज करवाना है कि नहीं करवाना है। तो एज एज सच कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई मनाही नहीं है कैंसर के इलाज के लिए। हमको ये देखना है कि पेशेंट फिजिकली कितना फिट है, और अगर वो फिजिकली फिट है तो चाहे वो 50 साल में की उम्र में आता है, चाहे 60 साल में, चाहे 70 में, चाहे 80 में, वो कैंसर के ट्रीटमेंट अपनी करवा सकता है। और कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अपने डेली रूटीन में वापस आ सकते हैं। यस, इट इज ट्रू। और एक जो मिथ है कि पेशेंट कई बार कहते हैं कि बायोप्सी नहीं करवाएंगे क्योंकि बायोप्सी करने से कैंसर को छेड़ देंगे तो फैल जाएगा। ये भी गलत है। बायोप्सी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए एसेंशियल है। बायोप्सी करके ही हम कैंसर को कंफर्म करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी ट्रीटमेंट होती है। Lastly, at our hospital, we are providing all the facilities for cancer treatment which are required for complete treatment. It's a comprehensive cancer care hospital where all the 3 modalities of cancer are available. Cancer is curable. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज हैं, आम जनता है जो ये एग्जाम्पल है कि भी कैंसर अगर हो गया तो ये कोई लाइफ का एंड नहीं है। आप इसकी ट्रीटमेंट के बाद भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये सभी सेलिब्रिटीज अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाने के बाद अभी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू। नाउ आई वुड इनवाइट एनी क्वेरीज, एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स। Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Sahu, for such a wonderful talk. We will now have a question answer session. Before that, हमारे जितने पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने वीडियो ऑन कर लें ताकि हम सबको कैमरे में कैद कर सकें, सबकी फोटोग्राफ। अपने वीडियोस ऑन कर लें फॉर सम टाइम। यू कैन वीडियोस ऑल्सो, वैसे म्यूट रखें। और इसी बीच हमारे में डॉक्टर परवेज सबलोग, असिस्टेंट गवर्नर जोन 15 के भी आ गए हैं। A very warm welcome to you, sir. You are welcome to this webinar. And I can also see Thank you. DG Ramesh Bajaj logging in. You are also welcome, sir. So all the participants are requested to post their queries in the chat box as requested by Dr. Neelam Thapar also. And may I now request Dr. Neelam Thapar, pediatrician of this district, to act as moderator. Dr. Neelam Thapar. It was such an elaborate talk, बहुत ही ज़्यादा informative. Thank you so much, Dr. Rajan Sahu. Thank you, ma'am. And so many things we came to know जिनका हमें नहीं मालूम था। और I don't think लोगों के पास ज़्यादा questions हैं पूछने के लिए। अभी तो डॉक्टर परवेश ने पूछा है कि
What about mass screening? Mass screening is not an option for breast cancer. कारण कि एक तो ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, वो भी एक पर्टिकुलर एज के बाद ही ज्यादा कॉमन है, तो हम उस एज के बाद ही स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइस करते हैं. सो आफ्टर द एज ऑफ 40 we advise, and that through a mammography every 1 or 2 years. Okay, thank you. Thank you, Dr. Now there is a question from Dr. Jaspreet Kaur. If a woman had surgery and completed the treatment and now not taking any medicine, क्या ये breast cancer दोबारा आ सकता है? And what are the chances? जी, देखिए ब्रेस्ट कैंसर पूरी लाइफ में कभी भी दोबारा आ सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन कि जब उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट हुई थी तो वो किस स्टेज पर थी उनकी बीमारी. तो जब अगर स्टेज 1 रही है, कैंसर दोबारा आने के चांसेस कम हैं. स्टेज 2 रही है तो उससे ज्यादा है, स्टेज 3 है तो उससे ज्यादा है. तो कभी भी ये 0 नहीं होते, लेकिन किसी भी स्टेज में 100% भी नहीं है कि अगर स्टेज 3 है तो उनको बीमारी दोबारा आएगी ही आएगी. और इसी कारण से हम पेशेंट को फॉलो अप एडवाइस करते हैं. कैंसर दोबारा आने के जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ ट्रीटमेंट है. तो पहले 2 साल तक फॉलो अप थोड़ा सा स्मॉल इंटरवल्स के अंदर होना चाहिए, एवरी 3 months. उसके बाद हम उसको 6 months के इंटरवल पे कर सकते हैं टिल 5 years. 5 साल के बाद कैंसर के दोबारा आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, लेकिन 0 नहीं होते. इसलिए एटलीस्ट वंस अ ईयर आफ्टर 5 years भी पेशेंट को फॉलो अप रखना चाहिए अपने डॉक्टर के पास. There is a question from Anita ji. She wants to know, should we avoid any sort of microwave in the house? Do you have any idea, is it related, it has link with breast cancer? Microwave, has it any link? Right. Ma'am, there are conflicting reports regarding use of microwave. So there are no definitive studies जो कि ये कह रही हैं कि माइक्रोवेव यूज करने से कैंसर रिस्क बढ़ जाता है. I am myself using microwave at my home. जो एक थोड़ा सा सजेशन है वो ये है कि प्लास्टिक यूटेंसिल्स ना यूज करें माइक्रोवेव में. ग्लास utensils are better because there is a risk of leaching of chemicals from the plastics into the food items at a higher temperature. But glass items are, in my opinion, they are safe. And presently there are no definitive studies which indicate कि microwave use करने से cancer risk बढ़ता है. There is a question from Dr. Parvesh again. How good is LED hand operated breast light? I am not aware of this thing. Even I am not. I don't know. आप unmute कर लीजिए, Dr. Parvesh. Yeah, I am unmuted myself. Yeah. There has been a screening going on with LED light, hand-operated light, to detect the mass in breasts. So, how good it is in screening procedure? Like, if we go for mass screening, how good is that device? Sir, frankly speaking, हो रही है. नेट पे आप जाएंगे तो वहाँ दिख जाएगी आपको कि काफी है यहाँ पे LED operated devices are there. This thing has not reached our textbook as of now, and not mentioned in our guidelines as of now. It may be in experimental stage, so I am not aware of this modality. And there was a very nice presentation by you, Dr. Rajan. Thank you, sir. टेक्स्ट बुक से नहीं, ये अब इन्होंने ना मतलब नेट पे वो करना शुरू कर दिया, एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया इस चीज को. तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि कितनी हमारे लिए जरूरी रहेगी ये. आई एम आल्सो मेडिकल ग्रेजुएट, तो कितनी जरूरी रहेगी, हम कर सकते हैं कुछ ऐसे कि नहीं कर सकते? नो सर, अभी मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि अभी इसका कोई रोल नहीं है सर. Then kindly please elaborate on mammography also, no? Just give a deep description about how often you should go for mammography for girls above 40 years
female over 40 years of age. Yes. Thank you so much. Yes, sir. Mammography is indicated after the age of 40 years. There are different guidelines. Some suggest it on annual basis and some suggest it at every 2 years. So digital mammography is better. In this, we take two views of the breast. One is craniocaudal, ऊपर से नीचे की तरफ पिक्चर लेता है एक्सरे, एंड अदर इज मीडियोलेटरल ऑब्लिक, एक ऑब्लिक पिक्चर लेता है जिसमें एक्सिला भी आ जाता है हमारा. So it is a good tool to detect the tumors at an early stage when they are asymptomatic. Obviously, screening means that we are detecting the asymptomatic lesions. If because of any reason we cannot do mammography, then the second alternative is ultrasound. And both are indicated after the age of 40 because the chances of cancer are less before this age. So at that age, these screening tests are not advocated. And we can continue these tests till the age of 60 because the aim of screening test is to detect cancers at an early stage and to decrease the mortality. So after the age of 60, even if we detect the cancers at an early stage, we may not be affecting the mortality as such. So from 40 to 60, yes, screening tests should be done. So you mean after the age of 60, no need to get mammography done? No, not as a screening test. Dr. Rajan, I want to say one more thing. एक मिथ होती है लोगों में कि मैमोग्राफी कराते हैं तो उसके बाद अगर कोई लंप मिलता है तो they think that it's cancer. So please clarify that every lump found in the breast is not cancer, and FNAC has got also a good role in detecting cancer and differentiating it from fibroadenomas and other benign tumors. Absolutely, sir. You have raised a very pertinent point. Now, this is a myth with the patients. They go for mammography and they come back that they have got cancer. Right, sir. Right, sir. Actually, मैमोग्राफी की जो रिपोर्ट आती है वो हमें एक स्कोर बताती है, उसको बोलते हैं हम बायराइड्स स्कोर. इट वेरीज फ्रॉम 0 to 6. तो वो स्कोर हर जो भी गांठ होगी जो नॉर्मल ब्रेस्ट से अलग रहेगी उसके बारे में बताएगा, लेकिन वो ये भी बताएगा कि इस गांठ में कितने % चांसेस लग रहे हैं कैंसर होने के. तो बायराइड्स 1 और 2 जो रीडिंग रहती है वो यूजुअली बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस लंप्स होते हैं, जो बायराइड्स 1 और 2 जो होते हैं. 3 इज अ मीडियम साइज जिसमें हमको डिसाइड करना है उसको फील करके या साथ में अल्ट्रासाउंड करके. 4 और 5 वो लीजन्स हैं जो कि वेरी हाईली सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी, जिनमें कि हमको एफएनएसी और या बायोप्सी करनी ही चाहिए. तो मैमोग्राफी कभी भी कंफर्म नहीं कर सकता कैंसर को, उसको कंफर्म करने का तरीका एफएनएसी या बायोप्सी ही है और उसके बाद ही हम फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं. केवल मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती. दीपा जी जानना चाहती हैं क्या किसी को भी किसी एज में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है इवन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25? Theoretically speaking, yes, cancer can occur at any age, but the youngest patient I have seen was around 25 years. Before that, it is rare, but yes, theoretically, it can happen at any age. Okay, now few questions from my side. जी ma'am. Any link between oral contraceptives and HRT and breast cancer? Oral contraceptives are basically they are protective against the breast cancer. Okay. But there's offside is that they increase the malignancy at other side, like uterine malignancy, ovarian malignancy chances that increase after the use of oral contraceptives. Ovarian cancer. Ovarian, but breast cancer, no. No. Okay. एक हमारे यहाँ गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है दूध बढ़ाने के लिए.
Do you think ये जो गाय भैंसों को हार्मोन्स लगाए जाते हैं, अगर हम उनका दूध पीते हैं तो उससे हम पे कोई असर हो सकता है? The injection they use is oxytocin. Yeah. This oxytocin is normally produced in female body at the time of lactation. Lactation. Again, I would say there are no definitive reports suggesting that use of oxytocin in animals for increasing the milk production is responsible for increased risk of malignancy. There are no definitive reports. But scientifically thinking, I think it can increase the risk of. Yeah, I think so, because one of the doctors pointed out that the early menarche it is happening because of, I mean, it is related to that. Maybe hormones given maybe. to the Actually, before labeling that as the culprit, oxytocin, we have to compare the two things. Like one population not using oxytocin, one population using that milk. So Yeah. there are no study which has proved the role in that way. But theoretically speaking, yes, as a layman, when we say that excess of everything is bad, so excess use of oxytocin obviously is bad, like the insecticides and pesticides to increase the crop production. Yeah. What we have seen after the Green Revolution. So that has also led to the accumulation of chemicals in our food chain, and they are also responsible for increased risk of malignancies. Any relation between PCOS and breast cancer? Obesity, of course, as you said, the fat gets converted into estrogens. Right, But ma'am. as such, PCOS, does it have any link to breast cancer? And PCOS is basically, it's a syndrome. Yeah. It is a mixture of other diseases. One component is obviously obesity. So if we remove obesity from that, then no. It also depends upon the hormone levels in a patient's body, because in PCOS, the hormone levels also change. So if there is a persistently increased estrogen, then yes, otherwise not. I think it was quite exhaustive. Like you said, lifestyle disease, Ji, ma'am. exercise and healthy food are really important for that. What about the mental status? Because the toxic thoughts, I think they are very, very sort of damaging to the genes, to the genetic material. Definitely. So how do you? Any kind of stress which decreases our immunity, our fighting capacity against the diseases, it can lead on to any disease, basically, not only cancer, any chronic inflammation. So not directly cancer, but it decreases the immunity of our body, which in turn is fighting against cell damage, against any infections. So in that way, yes, stress is a risk factor, and it is more important, especially if the patient is already affected by the cancer or is undergoing cancer treatment. At that time, if there is any stress, so that affects very badly in a patient's outcome. Thank you so much. There are no more questions in the chat box. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Neelam. Thank you, Dr. Neelam Thapar. Thank to Dr. Sahu also. Neelam Thapar has very nicely handled the question answer session and very effectively also. Dear friends, before I invite Rotarian Rekha Bajaj, our chief guest, to address the gathering, I would request First Lady of our club, Dr. Kiran Angra, to formally introduce her to the audience. It is just a coincidence that I am inviting First Lady of our club, my club, to introduce the First Lady of our district 3080, Dr. Kiran Angra. Thank you, Dr. Angra, for being with you in the Rotary. It's my privilege. Before I introduce her,
let me speak few lines for her. टकरा के जिद्दी लहरों से जो किश्तियां पार होती हैं, टकरा के जिद्दी लहरों से जो किश्तियां पार होती हैं, सच मानो दोस्तों उन्हीं को किस्मत में मंजिलें हजार होती हैं, उन्हीं की किस्मत में मंजिलें हजार होती हैं, उसी के एक रूप में, क्योंकि नवरात्रों में द नवरात्रा symbolizes the सशक्तिकरण of the women. I am reading the biodata, or I am introducing a woman who is who symbolizes that emblem, that is women empowerment. My joy knows no bound to introduce today's chief guest, Mrs. Rekha Bajaj, who was born in Banaras, a city situated on the banks of mystical river Ganga. Being born in the city of enlightenment and devotion, she has imbibed Sufism and philanthropic zeal from the very beginning of her life. Her present position as principal of PIET, Senior Secondary School, Panipat, her graduation from Lucknow University, post-graduation from Rajasthan University, and athletic coach training from NIS Patiala facilitate her holistic development and help her in becoming a strong psychological and cognitive support system for her husband, Rotarian Ramesh Bajaj, who is an innovative, enterprising, pioneering, and insightful personality, and presently serving as our district governor, that is district governor of 3080. The whole Bajaj family is dedicated to the cause of society, and her son Rohit and daughter-in-law Ritambra are also members of this largest non-voluntary organization of the world, I mean the Rotary. They all are Paul Harris Fellow. Due to her relentless and tireless efforts in character building, leadership qualities, self-reliance among citizens of India, she has bagged awards from President of India and Governor of Himachal and Haryana under Bharat Scouts and Guides. She is trustee and president of Chetana Foundation, which inculcates passion and passion and education among the young children for which she wants to instill self-confidence. It was generally believed, you all know, generally we send the children to school. We ask them to get up in the morning and send them, push them in the transport and shift them, make them to go to school. But her trust, Chetana, instills curiosity among children so that they could go to school without any compulsion. These are the words of Osho also. Make your children adopt your passion. Don't push them to the way you like. Don't push them in the profession you feel that is good for them. She also enlightened people through Roshni Foundation for awareness about various social issues. Dear Madam, Rotary is proud to have such a versatile personality with us. We all welcome you with open heart, open mind, open arms. Before I finish up, I like to again finish up with the Hindi couplets. Na thake kabhi pair, na kabhi himmat hari hai. Na thake kabhi pair, na kabhi himmat hari hai. हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है. ऐसे लोग, ऐसे की जल्दी बताना, ये अर्जेंट है. मेरे को महिलाएं सदा आगे अग्रसर रहती हैं, सफर को आगे ले जाती हैं. इसी शब्दों के साथ मैं रोटरी के इस फोरम से आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. I request Dr. Angra. I request Dr. Angra to please invite Dr. Mrs. I now invite Rotarian Rekha ji for her address.
Thank you, sir. Thank you, Dr. Kiran. It was wonderful. Thank you so much for introducing me in such a beautiful way. It was very nice. This is my first virtual meeting with the Ambala city, I can say, because all 5 clubs are there. So President Dr. Sujit Angra ji, President Vijay, President Harvinder ji, President Rajkumar ji, President Shashi Gulati ji. Thank you for inviting me. Of course, AG Ashok Sharma ji. I remember Ambala with one name, Yash ji. So my tribute to Yash ji today. And of course, after Yash ji, I can just recognize Ambala with Kiran Kharbanda ji. I remember Kiran ji used to call me on my birthdays and wishing me for so many years. Thank you, Kiran ji, for keeping me in your memories and keeping me in your mind and wishing me every year. And of course, VK Bhaiya, the president, the member of Ambala Central Club, and his blessings are always with me. Manmohan Meni ji, whom I know, he's from Ambala city and a very active Rotarian. So if I start with, thank you, Dr. Rajan Sahu, for a beautiful view and about cancer awareness. Whatever you spoke, I heard so many times about cancer awareness program. You explained it. It was very nice. Yes, there are so many things. The first point you just mentioned in your talk, the ladies, the condition of ladies in India, how we ladies have been treated by the ladies of the family. So for that, education is must. If the ladies, the girl child is getting education, everything will go smooth. After education, I say awareness. Such Rotary clubs are giving such talks, and these kind of awareness are very, very important. So lack of education, if we say, Rotary can play a very important role if you can support girl child and if you can support the whole society, the people, as Dr. Kiran was telling about the Chetna. Our mission is we are working for slum children, where the schools are going to children. Wherever we are finding 20 to 30 children, we are opening a center. It is not a school, it is a center. Such 67 centers are in Panipat, where due to COVID, they are not working right now as we cannot collect children together. But from last 17 years, we are working for them. And you know, when the children, they were coming, the grandmothers who were just dropping them to the center, they said, can't we study? So we opened adult literacy centers. 7 adult literacy centers are on. And when the elderly lady is aware about the cleanliness, the hygiene, the system, how to educate, what is the importance of education. यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जब वो लेडीज पढ़ना शुरू कर देती हैं, उसके बाद उनके घर में अंधकार नहीं रहता. और महिलाएं, अगर बड़ी बूढ़ी महिलाएं पढ़ना शुरू कर दें, मेरे पास 16 साल की बच्ची से लेकर जो किसी एक लड़के की बहन है, 82 साल तक की महिला पढ़ रही है. और जब हम उनकी फिटनेस की बात करें, तो हम उन लेडीज के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स कराते हैं. इस साल फरवरी में हमने स्पोर्ट्स इवेंट कराया, तो उसमें 76 इयर्स की लेडी ने मटका दौड़ में फर्स्ट प्लेस लिया. She was so excited when she stood first. For the first time, she stood on a victory stand. She started crying. And she said, मेरी जिंदगी में ऐसा भी समा आना लिखा था, ये मुझे उम्मीद नहीं थी. आपकी वजह से, रोटरी की वजह से ऐसा हुआ. तो as I am part of Rotary Panipat Central, my club is supporting 7 centers of Chetna, and different other clubs of Panipat, they are supporting Chetna. So when the
part of lack of education will be over. Everything will be clear, crystal clear. Awareness. All the Rotary clubs all over India, they are creating awareness virtually nowadays. Wherever physically conditions are allowing, people are going there also. In India, cleanliness is the biggest part. Cleanliness, lack of cleanliness. We as a Rotarian can plan certain things, plan certain projects, then in which we can just think how to make that area clean, how to make that society clean, how to make the families, the awareness about cleanliness to the families. It's very, very important. Of course, as Dr. Rajan Sahu mentioned it, unhealthy habits. Unhealthy habits, it is, say, I am with all healthy habits. No, even I have few habits which are not good. But yes, we can create awareness about healthy habits also. Now, awareness about health and fitness, especially ladies, since they don't get time for themselves. मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है. अगर हम एक ही विचार ठान लें कि मुझे अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, जैसे डॉक्टर राजन ने कहा कि ओबेसिटी इज अ बिग रीजन. अगर महिलाएं ये सोच लें कि हमें अपने आप को फिट रखने के लिए अपने लिए 10 मिनट ही दिन में देने हैं, तो वो 10 मिनट में हम क्या करें? तो रोटरी क्लब्स इनके लिए भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. उनको बता सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको जाकर बताना है. You can create a small video, share in the group. Will you believe people, they have smartphones in all strata of society and they can easily view those videos. Those small videos mentioning Rotary name, fitness for ladies, fitness for children, fitness for men, because all different exercises are different. If we say that what type of exercise a male can do, if you are a sports person, you can do all exercises. But yes, some, because मुझे याद है, मुझे एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर आप एक बंद खिड़की को खोलने की कोशिश करते हैं तो खिड़की खुलेगी तो नहीं, क्योंकि वो जमी हुई है, वो या तो टूट जाएगी या क्रैक हो जाएगी. तो फिटनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए विद इजी एक्सरसाइजेस, हम तेल लगाएंगे खिड़की में उसको खोलने के लिए. ऐसे ही हमें अपने शरीर को तेल लगाना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा, हमें अपने आसपास के वातावरण को तैयार करना होगा, हमें अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिंदगी में फिटनेस कितनी जरूरी है. मोदी जी ने भी कहा है फिट इंडिया. Will you believe, with a very small thing this says कि first a lady should know what is her weight, what is her height. If she is not keeping a correct posture, then how she is reducing her height? The backbone is bending in front and we are having humpback. These things are not good even for ladies. So fitness is very important. What is the angle of my body when I'm sitting? I remember my dad's word. He said, if you are just not sitting properly, then nobody is gonna look at you. If you are not walking properly, nobody can even just acknowledge you. Your standing, your sitting posture, your walking, everything should be smart. Until date, if I just remember his word, as whenever I meet him, I said, Dad, aapne kitna acha mantra diya tha. That mantra, keeping your body erect, keeping your state erect, sitting straight. Nowadays, I see girls, they walk with the humpback. Why? Because mothers, they are not bothered. Because as a mother, we are not taking care. These very small things, if the family, if the lady of the family, if the mother of the family start thinking on these lines and they talk about fitness of the body with the family fitness, if you say family fitness, means everyone in the family has to be fit as per age. What is the height? As per height, what is the weight? If we keep all these things in mind,
we will not face any disease, we will not face any problem. As Dr. Sahu very clearly mentioned, when these cells, they don't die, they multiply. So if you're keeping yourself fit, if you're keeping your, if you're eating good food, all these things you will not face. But yes, as something is hereditary or something in genes, then things will go, you can't stop. But yes, you can delay. With what? How can you delay that? You can delay with good habits, with good diet, with your fitness level. And all these things matters in your lifestyle. When you keep yourself healthy, you have a healthy lifestyle, will keep you fit. Of course, in the end, Dr. Saab mentioned about the stress. Nowadays, since I'm in a school, I see children, if they have not done the homework, if they have not brought a copy in school, they feel stressed. They're stressed out. Oh, ma'am, gussa karengi, aaj hum copy nahi leke aaye. For that small thing, sometimes they start crying. What is the matter? Why we are facing the stress? Because we are taking things. It's not that we should not be serious about certain things, but we should be more aware. We should plan our timetable. The happy family will keep the child happy, happy atmosphere. Now the courses are going on for happy schools. Why can't we have our own course in the family, that how we can make our family happy? It is not the lady who has to take care. As a male, it is the responsibility of all elders in the family to keep a happy family, that no one should feel stress. For that, we need dialogue. For that, we need time. We have to sit with our children. We have to, the male of the family should have time to talk to the female of the family, that yes, this is the problem, how to cut out of that problem. So all these things are very, very important in life, and stress should not be the cause of this cancer. We should have certain kind of system, certain kind of mechanism in the family that should work as a stress buster. A good laugh even is a stress buster. So can't we have a smile on our face? A child who smiles 400 times in a day, just think how many times you smile in a day. Your smile makes other person feel good. Why can't we have the feel good factor in our life? Keep smiling. That smile face, when you're welcoming someone with a smile, the other person will feel pleased. He would love to talk to you. He would love to share their problems with you. So smile is also very important. When a child can smile 400 times, why can't we? What is the stress? What is the problem? I was reading Chanakya. They said, जिंदगी में अगर कोई कहता है मैं व्यस्त हूं, तो वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है. So अगर अपने आप को अस्त व्यस्त नहीं कहलाना है, तो मुस्कुराइए, अपने टाइम को प्लान कीजिए, अपनी एक्टिविटीज को प्लान कीजिए. ऑफ कोर्स जब आप सब कुछ प्लानिंग के साथ करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, हेल्दी रहेंगे, so these things will, again I can say, you cannot stop. Eventually if something has to happen, it will happen, but yes, you can delay certain things. So thank you, Ambala Club, for inviting me. It was nice talking to you, talking with you all. And thank you, Dr. Rajan Sahu, for giving such a beautiful talk. It was wonderful talking to you. Thank you, Sujit Sangraji. Thank you so much. Thank you, Rekha ji. Thank you for enlightening us about cleanliness, about fitness, about awareness. Madam, हमारे रोटरी में भी अम्बाला में awareness के कई प्रोग्राम चलते रहते हैं, especially in Corona period. We have been doing programs for awareness among the community. और इसमें हमारे रोटरेट क्लब्स जो हमारे वो भी साथ देते हैं. Even NCC cadets also they participate in that. आज भी NCC cadets हैं कुछ, and Major Sudesh Prashar also is there, who is from NCC battalion. Thank you, madam. Thank you so much. If anyone
on Thank this you so much. speak something, he or she is most welcome. किसी ने अपने विचार व्यक्त करने हो किसी बारे में, वेबिनार के बारे में, he or she is most welcome. यस सर, मैं मेजर सुदेश पराशर हाँ जी फर्स्ट मैडम. हरियाणा गर्ल्स बटालियन से बोल रही हूँ और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब अंबाला को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित करवाया और काफी लोगों तक इसको पहुंचाया और इस जो ज्ञान प्राप्त किया है सभी ने, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अति आवश्यक था सबके लिए और आगे भी ऐसा होता रहेगा। जैसा आपने बताया कि कार्यक्रम आप करते रहते हैं और ये जो प्रोग्राम था ये इसलिए अच्छा था क्योंकि हमारे जो कैडेट्स एनसीसी कैडेट हैं गर्ल्स बटालियन के, हमारे सभी कॉलेजेस में ये प्रोग्राम का लिंक गया है और बच्चों ने ये बहुत अच्छे से मुझे पता है ज्वाइन किया होगा और लड़कियां इसको करती हैं क्योंकि हमारी गर्ल्स बटालियन है तो लड़कियों ने इसको किया है और लड़कियां जब ये प्रोग्राम देखेंगी या देखा है उन्होंने अभी जो जितना भी, उसके लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो पूरे घर में जितनी भी लेडीज हैं उनको और अवेयर कर सकेंगी। खुद इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पूरे घर को अच्छे से समझा पाएंगी और उसके अलावा और भी जो हमारे आगे कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे कैडेट्स आगे जाके लोगों को बताते हैं, वो आगे के लिए बताने के लिए उत्सुक रहेंगी क्योंकि इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद वो वहां जाकर जो हमारे और हम प्रोग्राम करते हैं अलग अलग जगह पे जाके, तो वो भी उनको आगे इस प्रोग्राम को बताएंगे। तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ रोटरी क्लब को और इसके अलावा मैं भी अपने जैसे छुट्टी पर हूँ फिर भी मैं जिस प्लेस पे आई हूँ वहां भी मैंने काफी लोगों को इस लिंक को भेजा है ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये जो आपने आज का जो प्रोग्राम रखा है, आप सभी का, डॉक्टर साहब का, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। Thank you, Mr. Sudesh. जय भारत। Thank you. Anybody else? I would now request our AG, Rotarian Ashok Sharma, for his concluding remarks. उससे पहले a ceremony like this cannot end without acknowledging the blessings and efforts of all those who were involved directly or indirectly in organizing this webinar. So I would now request our Assistant Governor, Rotarian Ashok Sharma, to say a few lines and also propose vote of thanks. Thank you, Dr. Angraji. I think it is not a concluding session. It is a continuous session. We should go on because today Dr. Rajan Sahu has very elaborately explained how to prevent the cancer, especially breast cancer. That's very important. One sentence he has used, "Pehle pata nahi tha." This is a very important sentence. इसमें लेडी डॉक्टर को या अपने घर में किसी और लेडी को अगर लेडीज कॉन्फिडेंस में लेके अपनी बात को एलोबरेट करते हैं, आगे इसको ओपन करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रिवेंशन जो डॉक्टर साहब ने एलोबरेट किया है उसको आसानी से टेक ओवर किया जा सकता है और बात सामने आ सकती है। इंस्टेड ऑफ लेट स्टेज they should come forward in early stages what problem they are facing in their breast, suppose they are having any knot or anything. And Rekha Bajaj ji has further improved this. If we go for cleanliness, we will avoid the disease. So cleanliness is very important for any disease. If we are clean, we will avoid the disease. So prevention is also very better. This one should come forward for this all thing. Dr. Sahu has elaborately, this is very, very important point. Then ladies should come forward and explain what problem they are facing so that treatment can be given to them and proper prevention can be given to them. Now, our chief guest of the day, First Lady of the district, Rekha Bajaj ji, she is very energetic and thank you very much, ma'am, for sparing your valuable time to attend this webinar meeting which Dr. Surjit Angra has arranged in this zone. I know that DG Ramesh Bajaj ji is fully energetic
because of your support. You are always behind him. So he is working very, very hard, and we congratulate him also through you. Thank you, madam. Thank you very much. I further thank for Dr. Ujjwal for their beautiful Vandana, which she has recited in her melodious voice. Thank you, Dr. Vandana ji, Ujjwal ji, Dr. Neelam Thapar ji for question interaction session. You have done very well. Dr. Sablok, Assistant Governor Zone 15, I welcome you. I also welcome the member of Rotary Club, those who have presented a very nice video for the interaction of the people. Major Sudesh Parashar NCC से आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में. Thank you very much. My clubs, all the 5 clubs who have attended this webinar and they have supported everything. Rotary Club Ambala, Rotary Club Ambala City, Rotary Club Industrial Area Ambala, Rotary Club Barada, last but not the least, Rotary Club Central Ambala. Dr. Angra ji has added new dimension to this virtual meeting by adding some program before starting this. That has given a more interest in the members, those who have attended. I also welcome every member who have attended this program. And Dr. Sahab, thank you very much. You have arranged a good zone program. Please go on doing a continuous program. Let it be a continuous program. Thank you. Thank you very much. Thank you, AJ sir. Thank you very much. With this, ladies and gentlemen, we come to the end of this webinar. You can now enjoy tea and snacks at your places. Thanks a lot for being with us. We can now leave the meeting. Thank you so much. No, sir. Sir, we will have a national anthem and then we can go. Okay, thanks. Sir, we will have. We can all rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे Thank you very much. Thanks to each one of you.